Hello everybody. So today we will start our class with the discussion of your workbook, chapter number 3, energy depth relationship. Already मैंने की दे दी थी. Hopefully आपने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए हैं. So today I will discuss one by one all the questions so that किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट ना रहे. क्लियर है? तो मैं अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1. बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में? Water flows in a channel at a Froude number greater than 1. Froude number is greater than 1. Means the flow is subcritical or supercritical? Obviously the flow is supercritical. Froude number greater than 1 है तो flow किस टाइप का है? Flow is supercritical. Due to width contraction, depth will increase or decrease? ये हमें ऑलरेडी पता है, एनालिसिस कर लिया है. Due to width contraction, y will increase. Therefore, due to width contraction, y increases. Let me assume that there is no losses. तो अगर एलिवेशन में देखेंगे तो कुछ यही नजर आएगा. ये हमारा टोटल एनर्जी लाइन है. तो y is increasing. y is increasing. ये y1 है और ये y2 है. And this is our total energy line. तो ये क्या हो जाएगा? V2 square by 2g. Considering no energy loss, कुछ बोला नहीं गया तो we will not consider any energy loss. I can see that therefore V2 square by 2g is less than V1 square by 2g since y2 is greater than y1. This implies V2 is less than V1. Therefore, velocity decreases and depth increases. तो correct answer क्या होगा? Correct answer would be C. इसका correct answer क्या होगा? Correct answer would be C. Clear है? Y बढ़ेगा, y will increase. This gap will decrease, therefore V2 square by 2g would be less than V1 square by 2g. Thus, velocity will decrease when y increases. Clear है? इस तरीके से भी हम बहुत बार सोचेंगे. तो ये अच्छा क्वेश्चन था. इस तरीके से भी आप वेलोसिटी और डेप्थ को रिलेट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ओपन एंडेड है. देखो क्यों ओपन एंडेड है मैं बताता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू. लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. हर क्वेश्चन में ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होगा तो आई विल डिस्कस. मोस्टली आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. A constant discharge flows in a channel across which a hump of moderate height is constructed. Then along the flow direction. देखो क्या हो रहा है कि एक हम्प आपने बनाया है और तो कुछ बोला नहीं है. फ्राउड नंबर भी नहीं दिया, बताया भी नहीं कि जो है फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है. इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है. यू कैन अज्यूम इट टू बी सब क्रिटिकल ऑल्सो एंड यू कैन अज्यूम इट टू बी सुपर क्रिटिकल ऑल्सो. सब क्रिटिकल मानते हुए ऑप्शन देखिए, सुपर क्रिटिकल मानते हुए ऑप्शन देखिए. फर्स्ट वी विल अज्यूम इट टू बी सब क्रिटिकल, देन वी विल अज्यूम इट टू बी सुपर क्रिटिकल, एंड देन वी विल सी by considering subcritical flow what are the options correct, and by considering supercritical flow what are the options, what are the statements correct. Assuming subcritical अगर मान लो तो फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हम क्रिएशन के कारण हमारा डेप्थ बढ़ता है कि घटता है. ऑलरेडी वी हैव डन दिस एनालिसिस. डेप्थ रिड्यूसेस. So first is correct in case of subcritical flow. Obviously ये total energy line है तो specific energy तो कम हो रही है ना. तो specific energy is not constant.
नीदर इन द केस ऑफ सब क्रिटिकल नॉर इन द केस ऑफ सुपर क्रिटिकल। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो 100% गलत है। फ्राउड नंबर रिड्यूसेस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, अगर आप देखोगे फॉर रेक्टेंगल, मैंने मान लिया रेक्टेंगुलर चैनल, सिंस एनालिसिस सिंपल हो जाएगी, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर जी वाई क्यू। तो अगर डेप्थ बढ़ेगा, इफ डेप्थ इंक्रीजेस, क्यू इज कांस्टेंट, तो फ्राउड नंबर विल व्हाट, रिड्यूस। तो फ्राउड नंबर रिड्यूसेस। थर्ड, ओके, if depth is if depth is decreasing, in the case of subcritical flow depth is decreasing, so Froude number should increase। तो इसमें तो बट लिखा हुआ Froude number reduces, तो third statement is incorrect in for subcritical flow। क्लियर है? critical depth remains unchanged, है ना, yc is equal to क्या है, q square by g 1/3। It depends on the cross-section shape parameters and discharge. Both are not changing. Therefore, YC is constant. So, fourth is also correct for subcritical as well as for supercritical. So, assuming supercritical, अगर मैं supercritical flow assume कर लूँ, तब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे? If I assume supercritical flow, then what are the options correct? Depth of flow reduces, ये गलत है, उसमें तो depth of flow क्या है, बढ़ेगा। Second, remains unchanged, ये भी गलत है, specific energy will change। Froude number reduces, ये सही हो जाएगा। देखो अब अगर मैंने depth को बढ़ाया तो Froude number should reduce, and fourth is also correct for supercritical flow। So for subcritical flow 1,4 is correct, and for supercritical flow 3,4 is correct। जो भी आंसर हो वो हम क्लिक कर लेंगे। हमें तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, that is 1 and 4। अब फालतू की बकवास नहीं करेंगे, सर अगर 3 and 4 होता तो क्या करते, बेटा फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। आपके एग्जाम में केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो कभी कभी इस तरीके से ऑप्शंस को देखकर भी हमें जजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? या तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन, ये आंसर ऑप्शन देता, या 1 and 4 ऑप्शन देता। दोनों ऑप्शन दे देता तो फिर नहीं हो पाता क्वेश्चन। क्लियर है? देन इट वुड हैव बीन एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। एग्जामिनर मजाक थोड़ी ना कर रहा है हमारे साथ, एक ही ऑप्शन रखेगा, तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा इस केस में, बी, बॉम्बे। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। Doing question number 3 now. Let's discuss question number 3. Let's discuss question number 3. Third question discuss कर रहा हूं। A rectangular channel is 6 meter wide and carries a discharge of 6 meter width है उसकी। डिस्चार्ज कितना कैरी कर रहा है, 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें ऐसे। द अपस्ट्रीम डेप्थ इज 2 मीटर। अपस्ट्रीम डेप्थ कितना है, 2 मीटर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी, अप्रोक्सीमेट बताना। ऑब्वियसली स्पेसिफिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, y प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g वाई स्क्वायर v स्क्वायर। सारी वैल्यू फिट कर दो। y कितना है, 2 प्लस 30 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू b कितना है, 6 का स्क्वायर, और y कितना है हमारा, 2 का स्क्वायर। तो लगभग आंसर आ जाएगा जो भी दिया हो, डेट इज 2.3 मीटर। इसको तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से। लगभग यही आंसर आएगा, डेट इज 2.3 मीटर। अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन थी, इसीलिए मैंने क्या मान लिया उसको, 1। अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फॉर अ स्मूथ हम्प, एक स्मूथ हम्प है हमारे पास, वी हैव अ स्मूथ हम्प लाइक दिस, इट शुड फंक्शन एज अ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, उसको एक ब्रॉड वियर यही होता है, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, द डेप्थ डेल्टा जेड ऑफ द हम्प अबव द बेड, मतलब ये हम्प की हाइट बतानी है, वी हैव टू रिपोर्ट द हाइट ऑफ दिस हम्प डेल्टा जेड such that it functions at a broad crested weir. क्लियर है ना, हमें वो डेल्टा जेड की हाइट बतानी है, such that this hump functions as a broad crested weir. अब समझिए ब्रॉड क्रेस्टेड वियर पर हर वक्त फ्लो जो है वो क्रिटिकल होना चाहिए, डेट इज डेप्थ शुड बी क्रिटिकल। ये ब्रॉड क्रेस्टेड वियर की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझाता हूं। क्योंकि ब्रॉड क्रेस्टेड वियर विल फंक्शन एज अ स्ट्रक्चर ऑन विच वी कैन मेजर द डिस्चार्ज। मान लीजिए अगर हमें एक ही डेप्थ मेजर, एक ही पैरामीटर मेजर करना हो डिस्चार्ज निकालने के, डेट इज डेप्थ, तो आप कहाँ मेजर करेंगे? फिर टॉप पे मेजर कर लेंगे। अगर आपको पता लग जाएगा YC तो डायरेक्टली आप YC से क्या निकाल लेंगे? मान लीजिए YC इक्वल टू Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/3। अगर YC पता होगा तो आराम से आप क्या निकाल लीजिएगा? Q भी निकल जाएगा। That is, we can calculate the discharge by only measuring the depth at the broad crested weir. So broad crested weir is a structure which is normally used for measurement of discharge. तो अगर यहाँ पर डेप्थ क्रिटिकल होनी है तो डेल्टा जेड की वैल्यू या तो डेल्टा जेड मैक्स के बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो। अगर डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा हो जाएगा तो कंडीशन विल बी चोक्ड एंड after establishment of flow in choking condition we know that the flow will become critical at this section. So अगर यहाँ पर critical depth चाहिए तो डेल्टा जेड या तो डेल्टा जेड मैक्स के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, such that the condition is choked. और डेल्टा जेड मैक्स क्या होता है हमारा? It is nothing but E1 minus EC. So correct answer क्या होगा? Delta Z greater than equal to E1 minus EC. So correct answer is what? B. Correct answer is B. बॉम्बे। इसके बारे में हम GVF में भी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे क्लियर है, सिंपल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक डेटा के साथ लिंक्ड है। देखिए एक साथ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में, तो काफी वेटेज है इस टॉपिक का गेट में। 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं साथ, और क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कर रहा हूं एक साथ। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। So I am discussing all the concepts in class. Clear है? Let's proceed. Question number 5th की तरफ proceed कर रहा हूँ। I am proceeding towards question number 5th. 5th में देखिए क्या बोला जा रहा है। A rectangular channel 6 meter wide carries a discharge of, एक rectangular channel है जिसकी width है 6 मीटर। डिस्चार्ज कितना है? डिस्चार्ज 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिफॉर्म फ्लो विथ नॉर्मल डेप्थ दे रखा है, कितना है इसका नॉर्मल डेप्थ? 1.6 मीटर। मैनिंग्स एन दे रखा है, दैट इज 0.015। सबसे पहले मुझे इसका लॉन्जिट्यूडिनल बेड स्लोप निकालना है। हमें पता है at y is equal to yn SF, that is energy line slope is equal to bed slope. Clear है? SF is nothing but what? Energy line slope. So by Manning's, हमें तो S0 निकालना है ना, तो by Manning's हम क्या लिख देंगे? By Manning's
Q is equal to A by N R to the power 2 by 3 S naught to the power half, and R is equal to A by P. This implies Q is equal to A to the power 5 by 3 upon N P to the power 2 by 3 S naught to the power half. तो डिस्चार्ज कितना है हमारा 16. एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द एरिया? Area will be 1.6 into B to the power 5 by 3. N कितना हो जाएगा? 0.015 into P. Wetted perimeter. Wetted perimeter कितना होगा? B plus 2I. 2 into 1.6 to the power 2 by 3 S naught to the power half. इसको सॉल्व करके S नॉट आएगा. S नॉट लगभग जो आंसर है वही आ जाता है, डेट इज 0.000585. S नॉट यही आ जाएगा 0.000585. डेट इज करेक्ट आंसर इज. सिंपल था ये तो, एकदम कुछ था ही नहीं इसमें. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. ये तो लिख लीजिएंगे सभी. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल. इसको भी एक बार देख लेता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूं. A hump is to be provided on the channel bed, the maximum height of the hump without affecting the upstream condition. तो डेल्टा जेड मैक्स कितना होता है? E minus EC. तो we have to calculate E also and we have to calculate EC also. E कितना होगा? E will be equal to, क्या लिख दूंगा? YN plus, क्या करूंगा? स्मॉल q स्क्वायर या q स्क्वायर बाई 2g b स्क्वायर yn का स्क्वायर. सो yn कितना है हमारा? 1.6 प्लस 16 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81. कुछ नहीं गिवन है तो 9.81 ही लेंगे. 6 का स्क्वायर इंटू yn है हमारा 1.6 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एनर्जी की वैल्यू आएगी. द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल कम आउट टू बी, मैंने कैलकुलेट कर दिया था. एनर्जी जो आएगा हमारा, डेट विल बी समथिंग, एनर्जी कितना आ जाएगा? 1.742 मीटर्स. इसको कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी 1.742 मीटर. ईसी कितना होगा हमारा? 3/2 डेट इज 3/2 q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3. अब तो ये याद ही हो जाना चाहिए आपको. 3/2 q स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? 16/6 का होल स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3. तो कितना हो जाएगा ये? EC विल कम आउट टू बी 1.347 मीटर. Therefore डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड मैक्स क्या होगा? डेल्टा जेड मैक्स इज इक्वल टू E माइनस EC, that is 1.742 minus 1.347. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 1.742 minus 1.347, that is almost equal to 0.395 मीटर. तो जो भी आसपास का आंसर है उसको क्लिक कर लीजिएगा. तो हमारा आसपास का आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? आवर आंसर विल बी B, that is almost equal to 0.4. क्लियर है मेरी बात? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.4. बी ऑप्शन करेक्ट है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने सॉल्व कर लिया. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 6 के बाद आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. नोट कर लीजिएगा इसको. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7.
7th क्वेश्चन हम सॉल्व करें। लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। एक बार पढ़ लेंगे सभी, फिर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। The channel width is to be contracted. The minimum width to which the channel can be contracted without affecting the upstream condition. At B minimum, E should be equal to EC. E तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा था, कितना था 1.742 मीटर, वैल्यू यही थी शायद 1.742। क्लियर है ना मेरी बात? सो EC को क्या लिखेंगे आप? EC इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल Q स्क्वायर बाई B मिनिमम का स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1/3। दिस इंप्लाइज B मिनिमम विड्थ ऐसे ही निकालते हैं ना, दैट इज EC इज इक्वल टू क्या होगा 1.742, दैट इज E। क्लियर है? तो वैल्यू फिट कर दूं इसमें, वैल्यू फिट करूंगा देखो क्या होगा, ये क्या बनेगा 27 पहले क्यूब कर लिया इंटू G कुछ नहीं दे रखा है तो 9.81 Q स्क्वायर, कैपिटल Q डिस्चार्ज कितना था हमारा 16 का स्क्वायर, और तो कुछ नहीं आएगा, इसी का क्या कर दूंगा बस स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 27/9। ओके, ये रह गया हमारा E क्यूब इंटू E क्यूब कितना कर दूंगा 1.742। अब सही है, तो इससे सॉल्व करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 4.1 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज हमें पता है एट द मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी तो सेम है, द डाउनस्ट्रीम एनर्जी विल बिकम क्रिटिकल, दैट इज डाउनस्ट्रीम फ्लो विल बी क्रिटिकल। ये मानते हुए मैंने बी मिनिमम की वैल्यू निकाली। क्लियर है ना? ओके, सो फॉर अ गिवन क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, 8 भी बहुत सिंपल है, 7th नोट कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं क्लास में, कोई खास बात नहीं थी इसमें। यू कैन सी दैट वंस द कंसेप्ट इज क्लियर तो क्वेश्चन अपने आप आपको सिंपल नजर आएंगे। एक बार अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है, द concepts if learned properly the questions will automatically become simpler in nature. Question number 8, for a given discharge the critical depth of flow for in an open channel depends on the channel geometry only, the channel geometry and bed slope, the channel geometry, bed slope, and देखो at YC FR is equal to 1. This implies FR square is equal to Q square T upon GAQ equal to 1. इसी से YC निकालेंगे। Therefore YC depends on, YC किस पे A और T depends on area and top width, that is channel geometry। area और top width किसका फंक्शन है? चैनल ज्योमेट्री का। और YC किस पे डिपेंड करेगा? YC विल डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, दैट इज Q। तो करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। बेड स्लोप पे YC नहीं डिपेंड करेगा, क्लियर है ना? YC विल नॉट डिपेंड ऑन द बेड स्लोप, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द चैनल ज्योमेट्री एंड डिस्चार्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A।
नॉर्मल डेप्थ डिपेंड करेगा चैनल ज्योमेट्री पर भी, बेड स्लोप पर भी एंड रफनेस पर भी। बट जो हमारा ये YC है, ये को केवल डिस्चार्ज तो गिवन नहीं है, कांस्टेंट डिस्चार्ज पूछा जा रहा था, तो इट डिपेंड्स ऑन चैनल ज्योमेट्री ओनली। सो 8 का आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। 9 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9 को सॉल्व करके दिखाता हूं, आप लिख लेंगे पहले इसको, देन आई विल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला जा रहा है। Let us see question number 9. A rectangular channel carries a uniform flow with a Froude number at Yn. Froude number FR1 बोल देता हूं is 2.83. The ratio of critical depth at YC is the critical depth, FR2 is equal to, खत्म करो, for rectangular channel हम FR square को क्या लिखते हैं? That is Q square by G by Q. Q square by G by Q. Therefore, मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ क्रिटिकल डेप्थ टू नॉर्मल डेप्थ। तो हम बोल सकते हैं FR1 का स्क्वायर अपॉन FR2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, या डायरेक्टली टू Q स्क्वायर बाई G तो कॉमन हो जाएगा ना। FR स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू YQ। सो ऊपर क्या चला जाएगा? FR2 के करस्पॉन्डिंग YC का क्यूब अपॉन क्या होगा? YN का क्यूब। तो रेशियो निकालना है मुझे तो बस। सो दिस इंप्लाइज YC बाई YN इज इक्वल टू FR1 कितना है? 2.83 का स्क्वायर अपॉन FR2 का स्क्वायर इज 1 टू द पावर 1 बाई 3। तो 2.83 to the power 2 by 3, that will come out to be 2.00. So correct answer क्या होगा? Correct answer is, तो कोई खास बात नहीं थी, मुझे YN पे FR गिवन था, YC पे FR2 1 होता है, बस उनका रेशियो लिया एंड आई गॉट द आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। 10th भी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाता हूं। 9th आप लोग नोट कर लेंगे। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10th। में देखिए क्या बोले जा रहा है। Question number 10th. A triangular open channel with a vortex angle of 90 degree. Vortex angle कितना है इसका? 90 degrees. Type 1 ही obviously, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। Slight slope 1 in 1. Clear है? Carries a flow at a critical depth YC। तो कितना सिंपल क्वेश्चन होगा? YC is equal to 0.3 मीटर। डिस्चार्ज ऑफ द चैनल। तो एट YC FR is equal to, और हमें पता है FR स्क्वायर किसी जेनरिक चैनल के लिए क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर T अपॉन G। टॉप विड्थ कितना होगा इसका? T is equal to 2y and area will be equal to how much? Area will be equal to my square करता तो it is nothing but y square। क्लियर है ना? तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस implies Q square T is 2YC अपॉन G YC के स्क्वायर का Q is equal to 1। तो Q is equal to क्या? G को 9.81 ले लेंगे आप, तो YC क्यूब
yc to the power 5 बचेगा, सो 9.81 इंटू yc कितना है हमारा 0.3 टू द पावर 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर रूट। तो कितना आंसर आ जाएगा डिस्चार्ज, कैलकुलेट करके देखेंगे एक बार। 9.81 इंटू 0.3 टू द पावर 5 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 0.11 आ रहा है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आ रहा है एकदम, 0.11 मीटर क्यूब पर सेकंड। कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। सो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 7 तो एक ही टाइप का था, डिस्कस कर देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. A rectangular channel is 3 meter wide and carries a discharge of 2.7 meter cube per second at a depth of 9 meter, 0.9 meter. A contraction of the channel width is proposed at a certain section. The smallest allowable contracted width that will not affect the upstream condition is. So मुझे B minimum निकालना है वापस से, तो एट बी मिनिमम E इज इक्वल टू EC। सो मुझे चैनल की विड्थ दे रखी है, रेक्टेंगुलर है 3 मीटर, डिस्चार्ज दे रखा है मुझे 2.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। डेप्थ भी दे रखी है मुझे 0.9 मीटर। पहले इससे E निकाल लो यार। E को क्या लिखते हैं आप, y प्लस क्यू स्क्वायर, स्मॉल क्यू स्क्वायर कर देता हूँ, क्यू, चलो कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2g बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई है हमारा 0.9 प्लस क्यू है हमारा 2.7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू बी 3 का स्क्वायर इंटू 0.9 का स्क्वायर। सो ई कितना आ जाएगा इससे, ई देखो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 0.9 प्लस 2.7 का स्क्वायर अपॉन 2, 9.81 अपॉन 3 का स्क्वायर अपॉन 0.951 मीटर। नाउ ये तो आ गया हमारा ई, क्लियर है। ई के बाद अब क्या करना है मुझे, नाउ EC इज इक्वल टू 3/2 YC क्यू स्क्वायर बाई बी मिनिमम का स्क्वायर G क्यू स्क्वायर बाई G Y 3/2 Y अपॉन दैट इज 0.951, दैट इज E इक्वल टू E होगा। दिस इंप्लाइज B मिनिमम इज इक्वल टू 27/8, क्यू स्क्वायर कितना होगा 2.7 का स्क्वायर अपॉन 9.81 इंटू 0.951 का क्यूब का स्क्वायर। तो बी मिनिमम आ जाएगा। बी मिनिमम की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं, देखिए, इंटू 2.7 का स्क्वायर अपॉन 9.81 अपॉन 0.9, आप भी कैलकुलेट करेंगे साथ साथ में तो खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर दैट इज 1.71 मीटर। 707 आ रहा होगा तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज 1 पॉइंट, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना था। देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, गेट में ये न्यूमेरिकल फिलिंग के आंसर्स आते हैं। मेरा आया था 1.707, तो अगर वैल्यू 5 या उससे ज्यादा है तो राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे आप, 1.71 मीटर। 1.70 लिखेंगे तो गलत भी हो सकता है,
क्लियर है मेरी बात? एनीवेज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। 12 देखिए हमने कर ही रखा है, 12th वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लेक्चर्स में सॉल्व कर दिया है, तो वापस नहीं सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। तो 11 तो सिंपल ही था एकदम, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। Question number 13. A 1 meter wide rectangular channel carries a discharge कितना है 2 meter cube per second. The specific energy depth diagram is prepared for the channel. It is observed in this diagram that corresponding to a particular specific energy, the subcritical depth is twice of the supercritical depth. So y1 is twice of y2. y1 is the subcritical depth या y1 is greater than y2. तो ये अगर मैं लिख रहा हूं तो obviously y1 is the subcritical depth and y2 is the supercritical depth. Alternate depth है ये. तो it is observed that y1 y2 are alternate depth. लिख देता हूँ चलो. y1, y2 इन पे क्या सेम रहेगा हमारा? एनर्जी सेम रहेगा. क्लियर, सिंपल है एकदम. द सबक्रिटिकल डेप्थ इज इक्वल टू, द सबक्रिटिकल डेप्थ हमें निकालना है, इज इक्वल नाउ E इज इक्वल टू y1 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई B होगा, that is 2 meter cube per second per meter. तो डायरेक्टली स्मॉल q के फॉर्म में लिख देता हूँ 2g y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस स्मॉल q स्क्वायर बाई 2g y2 का स्क्वायर. सिंस एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स आवर स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम, इसीलिए मैंने इक्वेशन लिख दिया. क्लियर है. नाउ y1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y2. मुझे y1 निकालना है तो y2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज y1 प्लस q स्क्वायर बाई 2g इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 को क्या लिखेंगे? 0.5 y1 प्लस q स्क्वायर बाई 2g इंटू 0.5 y1 का होल स्क्वायर. जरा इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके सही कर लेते हैं. y1 माइनस 0.5 y1 कितना होगा? 0.5 y1. q स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इंटू y1 का स्क्वायर भी देखो कॉमन ले लेता हूँ, इंटू y1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 0.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 1 दैट इज 3. तो 3 कर दूं डायरेक्टली, इंटू 3 कर दूं, इंटू 3. इससे y1 की वैल्यू आ जाएगी. दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू देखो कैलकुलेट कर देता हूं इससे. आंसर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 9.81 डिवाइडेड बाई 0.5 to cube root of answer 1.069 that is 1.07 मीटर. तो सिंपल क्वेश्चन था. 1.07 मीटर इज द करेक्ट आंसर. सिंपल जो डेटा दिया है बस मैंने उसी को सब्स्टिट्यूट किया है. कुछ ऐसे दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. जस्ट हमें पता होना चाहिए था कि ऑल्टरनेट डेप्थ्स के ऊपर स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है. अगर आप इस बात को नहीं यूज कर पाते तब आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते. क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं. प्रोसीडिंग ओके. क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने क्लास में कर रखा है.
वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन क्लास, तो इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 6.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड इन क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 करता हूँ, इसको नोट कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, एकदम भी टफ नहीं है। इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा तो दिमाग देखो लगाना पड़ेगा आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 15 देखा पढ़ लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जस्ट रीड द स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज बीइंग सेड हियर। An expansion in a horizontal rectangular channel takes place from a width of 2 meter to 3 meter. एक्सपेंशन हुआ है, चलो बस डेटा लिखते जाता हूं। 2 मीटर है, B2 कितना है 3 मीटर, तो चोकिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? कॉन्ट्रैक्शन के केस में चोकिंग होती है, एक्सपेंशन के केस में नहीं। डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 7.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड is y1 in the narrower channel, y1 is 1.2 meter, and in the broader channel it is y2 is 1.4. expansion का केस है। okay, assuming kinetic energy correction alpha to have value, अल्फा 1 दे रखा है हमें, ये भी यूज करना है हमें। अल्फा 1 कितना है हमारा 1.05 और अल्फा 2 कितना है हमारा 1.15 at the inlet and outlet of transmission. Estimate the energy loss. Therefore, energy loss EL को क्या लिखूंगा, is nothing but y1 plus q square by 2g b2 square b1 square y1 square। इसमें अल्फा भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन का, माइनस y2 that is y2 लिख देता हूँ एक बार, तो y2 प्लस अल्फा 2 q स्क्वायर बाई 2g b2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस आंसर आएगा। EL हो जाएगा y1 1.2 प्लस अल्फा 1 that is 1.05 डिस्चार्ज q स्क्वायर that is 7.2 का स्क्वायर अपॉन 2 into 9.81 into B1, 2 का स्क्वायर into 1.2 का स्क्वायर, माइनस Y2 1.4 प्लस अल्फा 2 1.15 Q स्क्वायर 2 into 9.81 into B2 3 का स्क्वायर इंटू y2 डेट इज 1.4 का स्क्वायर। तो क्लियरली EL इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी लॉस निकालेंगे तो डेट विल कम आउट टू बी 0.11 मीटर। आई एम कैलकुलेटिंग EL इज कमिंग आउट टू बी 0.11 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रोसीड। सिंपल है एकदम, ये तो कुछ था ही नहीं है सच। अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन था, वो हमें यूज करना आता था, सिंपल था, बस स्टेटमेंट वाइज बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखा रहा हूं आपको। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है। Question number 16. For the given shape of the channel section, shape is already given to us.
shape is given, both side slopes are same, 1 in 0.5. clear? Okay. The specific energy corresponding to a critical depth of discharge and specific energy निकालना है. YC दे रखा है 1.4. एक चीज देखो, अगर ये YC है, विड्थ हमारा 2.4 है, तो ये टॉप विड्थ की कैलकुलेशन हो जाएगी. टॉप विड्थ इक्वल टू क्या होगा? 2.4 माइनस 2 इंटू 0.5. 1 यूनिट जा रहे तो 0.5 यूनिट आएंगे, तो 0.5 इंटू 1.4 इंटू 2, क्योंकि दोनों तरफ से है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर. क्लियर है ना? तो टॉप विड्थ कितना है? ये 1 मीटर. एरिया भी यही कैलकुलेट कर दो, इसका काम आ जाएगा. एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ इंटू 1 प्लस 2.4 का इंटू 1.4. दैट इज 1.7 इंटू 1.4. 1.7 इंटू 1.4 दैट इज 2.38. ये कितना आ जाएगा? 2.38 मीटर. अब मुझे क्या क्या निकालना है? डिस्चार्ज निकालना है, स्पेसिफिक एनर्जी. देखो कितना सिंपल है. एट YC FR is equal to 1. This implies FR square is equal to Q square T upon GA cube is equal to 1. Q square, this implies Q is equal to G 9.81. एरिया इज 2.38 का क्यूब अपॉन में T डेट इज 1 का स्क्वायर. आंसर निकालिएगा. आंसर कितना आ जाएगा इसका? इट्स आंसर विल कम आउट टू बी, जो हमारा आंसर है डेट इज 11.5. 11.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सिमिलरली EC क्या होगा? EC को देखो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, EC इज इक्वल टू YC बाई प्लस A बाई 2T, है ना? यही लिखा जाता है किसी भी चैनल के लिए. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव करके दिखाया था, इसका यूज भी दिखाया था. इन टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से EC निकाल लिया कीजिए. क्लियर है मेरी बात? नहीं तो फिर वही EC प्लस YC प्लस Q स्क्वायर बाई 2G अपॉन A स्क्वायर और Q स्क्वायर इज T अपॉन G A क्यूब इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाता है. YC कितना है? 1.4 प्लस 2.38 अपॉन में 2. तो आंसर आ जाएगा इसका भी, दैट इज 2.59 मीटर. 2.59 मीटर, दैट इज आवर EC. सो EC भी निकाल दिया मैंने, Q भी निकाल दिया. क्लियर है? यही निकालना था बस इसमें, EC एंड Q. सो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17. सिंपल था ये, तो 17 की तरफ प्रोसीड करो. नोट कर लेंगे इसको आप. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे. 17 भी देखो सिंपल ही है, प्रूफ करना है बस हमें. लेट्स प्रूफ कर देता हूं. देखो ये सारे के सारे 17 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. Y1 and Y2 are alternate depth. YC is the critical depth. Then prove that Y1, Y2 is alternate depth. Therefore, and YC is the critical depth. Rectangular channel given है क्या? Rectangular channel. तो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल मैं क्या लिख सकता हूं? YC इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई G टू द पावर 1 बाई. दिस इंप्लाइज Q स्क्वायर बाई G इज इक्वल टू YC का इक्वेशन नंबर. सिमिलरली एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स,
at alternate depths. स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है ना, देखो उसी से y1 y2 के बीच का मैं लिंक निकाल सकता हूँ और मुझे समझ में आ गया था उसमें जो q² होगा उसको yc³ रखूंगा तो बन के आ जाएगा फॉर्म एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स स्पेसिफिक एनर्जी E इज सेम। इस तरीके से लिखना होगा आपको, तो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर एक क्वेश्चन आता तो इसी तरीके से प्रेजेंट होगा। तो E इज इक्वल टू y1 प्लस q² बाई 2g y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस q² बाई 2g y2 का स्क्वायर। एक तरफ ले लो और फिर खत्म करो। दिस इम्प्लाइज इधर लेके आओ y1 या q² बाई 2g 1 बाई y1 स्क्वायर माइनस 1 बाई y2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1। इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखो y2 माइनस y1 कैंसिल होंगे, यहाँ पे y2 प्लस y1 बचेगा और y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर उधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, q² बाई g क्या है, yc का क्यूब, तो yc³ इज इक्वल टू 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2। यही प्रूफ करना है, देख लो यही एक्सप्रेशन है, प्रूफ। सिंपल ही था, कुछ था ही नहीं, ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स है, बस इसी चीज का यूज किया कि एट ऑल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम। क्लियर है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। भी देखो कुछ ऐसा ही प्रूव है, दिखा देता हूं ये भी करके। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। में देखिए क्या बोला जा रहा है। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, क्लियर है। आई एम डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन कि कुछ बचे ही नहीं। फिर E इज इक्वल टू प्रूव करना है y1 y2 आर ऑल्टरनेट, बस एक्सप्रेशन देखते जाओ और प्रूव करते जाओ। एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम। तो हम तो ऐसा लिख सकते हैं ना, मुझे फॉर्म बना के लाना है, E लेके आना है। E इज इक्वल टू y1 अपॉन रेक्टेंगुलर चैनल है q² बाई 2g y1 का स्क्वायर। Similarly, E is also equal to y2 plus q² by 2g y2 का स्क्वायर। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल है दोनों इक्वेशन। रेक्टेंगुलर चैनल में ऐसे डिस्चार्ज पर यूनिट डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल। क्लियर है। अब बस क्या करो, उठा के एक को दूसरे में डाल दो। तो एक काम करो, यहां से y2 को उठा के या q² बाई g को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि कहीं q² बाई g नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू y1 प्लस q² बाई 2g, देखो क्या है E माइनस y2, क्लियर है, इंटू y2 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर। थोड़ा इसको फॉर्म दे दो, जो हमारा फॉर्म है वो बनाने की कोशिश करो। दिस इंप्लाइज
ये क्या हो जाएगा, देखो पहले तो यहीं पे कर देता हूँ। दिस इम्प्लाइज E माइनस y1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस y2 इंटू y2 का, एक तरफ क्यूब ले लो एक तरफ स्क्वायर ले लो, देखो क्या आ जाएगा, E इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, E इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ y1 क्यूब को, y1 क्यूब माइनस y2, सिंपल था। इसको थोड़ा और सुंदर सा फॉर्म दे दो, E इज इक्वल टू y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब को क्या लिखूंगा, y1 माइनस y2 y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं है, और ये क्या लिखूंगा, y1 माइनस y2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया है, y1 प्लस y1 माइनस y2 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज E, ये आ गया जो हमें प्रूव भी करना था शायद, y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2, यही प्रूव करना था ना, प्रूफ सिंपल था एकदम, इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इस तरीके से आप इसको आराम से प्रूव कर देते। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, 18 तक नोट कर लेंगे सभी, 19 की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 19 पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन ध्यान से, फिर मैं तो सॉल्व करूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूं। Question number 19. If F1 and F2 are the Froude number for alternate depth y1 and y2, y1, y2 are alternate depths. सबसे पहले फॉर रेक्टेंगुलर चैनल देखो, प्रूव कर रहा हूं, फिर वही प्रोसेस हम ट्राइंगुलर चैनल पे भी अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। देखो क्या करेंगे, मुझे ऐसा फॉर्म बना के लाना, देखो कैसे बनाऊंगा मैं, मुझे पता है F1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई G y1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई G y2 का क्यूब, सॉरी Q है y क्यूब होता ना, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं F2 स्क्वायर बाई F1 स्क्वायर, इनका रेशियो लूंगा तो क्या आएगा, y2 क्यूब, सॉरी y1 क्यूब अपॉन y2 क्यूब, दिस इंप्लाइज y1 बाई y2 इज इक्वल टू F2 बाई F1 टू द पावर 2/3। क्लियर है। एक तो फॉर्म बनता हुआ नजर आया मुझे, सेकेंड फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं ऑल्टरनेट डेप्थ्स का यूज करके। एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स हमें पता है क्या सेम होता है, स्पेसिफिक एनर्जी, इसको यूज कर रहा हूं। एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स स्पेसिफिक एनर्जी इज इक्वल, सेम, नहीं लिख देता हूं, इज सेम, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एट ऑल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम, दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू
y1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस, देखो स्मॉल क्यू उड़ाना है मुझे, तो मैं स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई जी को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, क्यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू f1 स्क्वायर y1 क्यू. नाउ q square by g is equal to f1 square y1 का क्यूब is equal to f2 square y2 का क्यूब. उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो एक सुंदर सा फॉर्म बन के आएगा. दिस इंप्लाइज y1 प्लस f1 स्क्वायर y1 क्यूब, तो मतलब ये बनेगा हमारा f1 स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाई 2 is equal to y2 plus f2 square y2 divided by 2. इसको एक फॉर्म दे दो, y1 y2 कॉमन खींच लो, तो y1 by y2 is equal to 2 उधर ले जाओ, 2 plus f2 का स्क्वायर अपॉन 2 plus f1 का स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, therefore from equation 1 and 2, तो बस कंपेयर करना है, आ गई वैल्यू. तो मुझे समझ में आ रहा था कि y1 और y2 और f1 और f2 में इक्वेशन लाना था, मैंने ला दिया. अब बस इक्वेट करना है, तो आ गया हमारा, दैट इज f2 बाय f1 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 प्लस f2. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वेरी सिंपल प्रूफ वाले क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं छोड़ने. क्लियर है? लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 19 का बी हम ट्राई करेंगे ट्राइंगुलर चैनल के लिए, वो भी हम इसी तरीके से ट्राई करेंगे. देखिए कुछ नहीं मेंशन है तो हम ट्राइंगुलर चैनल को हर वक्त क्या मान के चलेंगे? वी विल कंसीडर इट टू बी टाइप 1 विद इक्वल साइड स्लोप्स. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट बी कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा. आई एम नाउ डूइंग पार्ट बी. 19 पार्ट बी देखो क्या बोल रहा हूं. Okay, let's see. 19 का पार्ट बी कर रहा हूं. फॉर ट्राइंगुलर चैनल कुछ एक चीजें तो देखो मैं पहले से ही लिख लेता हूं. ट्राइंगुलर चैनल है, मान लो ये रहा हमारा ट्राइंगुलर चैनल. टाइप 1 मानूंगा अगर कुछ नहीं गिवन है तो. टाइप 2 मान लोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको. ये 1 in m है, ये हमारा मान लो डेप्थ y. टॉप पे डायरेक्टली लिखूंगा 2my और एरिया क्या हो जाएगा my. क्लियर है? फ्राउड नंबर का इक्वेशन लिख दो. f1 स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर t1 बाई ga1 का क्यूब. दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इंटू 2my1, या फ्राउड नंबर का स्क्वायर जेनरिक फॉर्म में बना लेता हूं, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. 2my डिवाइडेड बाई gmy स्क्वायर. This is equal to q square. This implies f square is equal to 2q square by g m square y to the power 5. 2q square by g m square, m cube नहीं है, m square y to the power 5. This implies therefore
फ्राउड नंबर का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y to the power 5 फॉर अ गिवन डिस्चार्ज. दिस इंप्लाइज f1 या f2 स्क्वायर by f1 square is equal to y1 f2 is inversely y1 by y2 to the power 5. This implies y1 by y2 is equal to f2 by f1 to the power 2 by 5. y1 by y2 is equal to f2 by f1 to the power 2 by 5. देखो ऐसा इक्वेशन बन गया एकदम सही, इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा वाला इक्वेशन बनाने के लिए क्या यूज करूंगा? एट ऑल्टरनेट डेप्थ्स, जो उस समय भी यूज किया वही मेथडोलॉजी है. स्पेसिफिक एनर्जी इज सेम, वहां पर भी यही इक्वेशन यूज किया था. E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा डायरेक्टली? E is equal to y1 plus q square by 2g a1 square is equal to y2 plus q square by 2g a2 square. f1 square क्या है देखो, q square by g a1 square is equal to, now q square by g is equal to f square f1 square a1 cube by t1 क्लियर है, is equal to f2 square a2 cube by t2. सब्स्टिट्यूट करो इसमें, therefore this implies y1 plus q स्क्वायर बाई जी की जगह ये आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये f1 स्क्वायर बाई 2 इंटू t1, a1 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर a1 इज इक्वल टू y2 प्लस f2 स्क्वायर बाई 2t2 a2 क्यूब बाई a2, यही हो जाएगा. देखो करेक्ट है ना मेरी बात, एकदम सही है. बस अब मुझे फॉर्म बन गया है, कुछ इसके आसपास की चीजें ले आता हूं. तो ये देखो, दिस इंप्लाइज a1 को तो क्या लिखोगे आप? m y1 स्क्वायर, सो y1 प्लस f1 स्क्वायर इंटू m y m देखो कैंसिल हो जाएगा. a बाई टी को हम क्या लिखेंगे? देखो y बाई 2, सो y1 बाई 4 इज इक्वल टू y2 प्लस, क्लियर है ना? a बाई टी हमारा क्या है, यहां से आप देख सकते हो, विल बी my स्क्वायर बाई 2my इज इक्वल टू y बाई 2. फॉर ट्राइंगुलर चैनल ये कितना आ जाएगा? y बाई 2. तो बस वही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, f2 स्क्वायर y2 बाई, सब कुछ सही कर लो. तो दिस इंप्लाइज y1 कॉमन आएगा, तो y1 बाई y2 इसको उधर ले जाओ, तो 4 प्लस f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया प्रूव हमारा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम प्रूव करेंगे. देयरफॉर देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर लो पहले आप पूरा. सो मैं यहाँ पर प्रूफ लिख देता हूँ, फिर नोट कर लीजिएगा पॉज करके. Therefore, from equation 1 and 2 हम क्या लिख देंगे? f2 by f1 to the power 2 by 5. प्रोसेस एकदम सेम था, बस ट्राइंगुलर चैनल पे रिपीट कर लिया. क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या आ गया है? करेक्ट आंसर जो प्रूफ करना था वो हो गया है प्रूफ. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 कर देता हूं आपके लिए. लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 नाउ. इसको नोट कर लीजिएगा, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ प्रोसीड करना. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन थे सारे, मैंने सारे डिस्कस किए हैं यहाँ पर.
क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करना हूँ आपके लिए। ट्वेंटी में देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। A rectangular channel is 3 meter wide and carries a discharge of 1.85 meter cube per second. रेक्टेंगुलर चैनल की विड्थ कितनी है 3 मीटर, डिस्चार्ज कितना है 1.85 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एट अ डेप्थ ऑफ y कितना है 0.5 मीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट अलाउबल कॉन्ट्रैक्शन इन द विड्थ सो दैट अपस्ट्रीम फ्लो इज नॉट। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर लिया, अब इसको मेरे को सॉल्व नहीं करना है, बस ऐड बी मिनिमम E इज इक्वल टू क्या है EC। E को कैसे निकाल लोगे आप, y दे रखा है q स्क्वायर बाई 2g b स्क्वायर y स्क्वायर, आप कर लोगे आराम से। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार अब रिपीट हो गए हैं, बी मिनिमम डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2.46। ऐसे बहुत बार अब कर चुका हूँ क्वेश्चन, 2-3 जगह रिपीट हुए थे, कर लिया। अब कर लेंगे बस ऐड बी मिनिमम E इज इक्वल टू EC। तो क्वेश्चन नंबर 21 और कर लेता हूँ मैं, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। 20th तो बहुत ही सिंपल था। A rectangular channel 2.4 meter wide carries a uniform flow of water. So हमारा रेक्टेंगुलर चैनल जिसकी विड्थ कितनी है 2.4 मीटर और यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर एट अ रेट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है 7 मीटर क्यूब पर। यूनिफॉर्म फ्लो है तो जो कांस्टेंट डेप्थ होती है उसको नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं, वो नॉर्मल डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। इफ देयर इज अ राइज ऑफ 15 सेंटीमीटर, डेल्टा जेड कितना है 15 सेंटीमीटर 0.15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट इज द मैक्सिमम राइज इन बेड that will be permissible so that there is no change in upstream depth of। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन जो है हमने क्लास में किया है, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो क्वेश्चन आप रेफर कर लीजिएगा। चेंज इन वाटर लेवल ऑलरेडी हमें निकालना आता है, चेंज इन वाटर लेवल अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.073 मीटर। सेम क्वेश्चन था और हमें डेल्टा जेड मैक्स निकालना है, दैट इज नथिंग बट E1 माइनस EC करके निकालोगे और वो कितना आ जाएगा 0.263 मीटर। तो सॉल्व कर लीजिएगा, हमने लेक्चर में किया था। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आफ्टर द डिस्कशन ऑफ हम्प, फ्लो ट्रांजिशन का पहला क्वेश्चन, दैट इज फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन का पहला क्वेश्चन, इसी के जैसा क्वेश्चन था, बस डेटा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन एकदम सिमिलर है। उस क्वेश्चन को रेफर करिएगा, यू विल बी 100% एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 21। तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा फालतू उसको सॉल्व करके। ट्राई योर सेल्फ के भी 2 क्वेश्चन बाकी है, उनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो केवल 2 क्वेश्चन बाकी है ट्राई योर सेल्फ के, उसको भी मैं डिस्कस करके खत्म करता हूँ वर्कबुक को। ट्राई योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन देखिए क्या, T1 सिंपल क्वेश्चन है T1। T2 बढ़िया क्वेश्चन, तो आई विल डिस्कस बोथ T1 एंड T2 इन डिटेल। देखिए मैं T1 एंड T2 डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं T1 डिस्कस कर रहा हूं। T1, वाटर फ्लोज इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें डेप्थ क्या है हमारा, T1 कर रहे हैं पहले हम सॉल्व। डेप्थ क्या है हमारा 1.2 मीटर, velocity is 2.4 meter per second. What will be the effect of local rise in the channel bed of 0.6 meter? क्लियर है? देखो फ्राउड नंबर निकाल लो आप,
एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर रेक्टेंगुलर चैनल हम डायरेक्टली इसके v बाई अंडर रूट जी वाई, तो एफ आर क्या हो जाएगा 2.4 अंडर रूट 9.81 इंटू 1. वैसे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे तो डायरेक्टली समझ में आ गया एफ आर इज लेस देन 1, देयरफॉर फ्लो इज सब क्रिटिकल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सब क्रिटिकल फ्लो के केस में अगर हम हम्प बनाते हैं, देयरफॉर सो ड्यू टू local rise there will be, मुझे तो व्हाट विल बी इफेक्ट पूछा है, मतलब डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम सरफेस बढ़ेगा या घटेगा ये बताना है। तो अगर लोकल राइज होगा तो इन दिस केस द डेप्थ ऑफ अप, फ्राउड नंबर तो लेस देन 1 है ना, तो अगर फ्राउड नंबर कम होता है तो डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम सरफेस पूछा है, डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम सरफेस, सॉरी। अब देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि कंडीशन चोक्ड है कि नॉट चोक्ड। चलो कैलकुलेशन चालू करते हैं, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा हमें इस केस में। y1 दे रखा है, v1 दे रखा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो स्मॉल क्यू क्या होगा हमारा, स्मॉल क्यू भी देखो कैलकुलेट करके चलता हूँ, v1 y1 दैट इज 2.4 इंटू 1.2, 2.4 इंटू 1.2 कितना होगा 2.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या होता था हमारा, सेकेंड स्टेप में हम लोग एनर्जीज कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम्प की हाइट क्या है, डेल्टा जेड इज 0.6 मीटर, तो E1 पहले निकाल लो आप। E1 कितना होगा हमारा, डेल्टा जेड मैक्स से मैं चेक कर लूंगा वेदर कंडीशन इज चोक्ड और नॉट। अगर चोकिंग होगा तभी अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज होगा, नहीं तो अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज नहीं होगा। तो चलो E1 निकालते जल्दी जल्दी, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g, y1 कितना है 1.2 प्लस 2.4 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81, सो 1.2 प्लस 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, दैट इज 1.494 मीटर। E1 कितना आ गया 1.494 मीटर। इसी का EC भी निकाल लो आप। EC इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 3/2 q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3, 3/2 q स्क्वायर कितना है 2.88 अपॉन g दैट इज 9.81 टू द पावर 1/3। तो ये कितना आ जाएगा EC, 3/2 इंटू 2.88 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3, तो कितना आ गया है 1.418 मीटर। सो डेल्टा जेड मैक्स क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा जेड मैक्स इक्वल टू E1 minus EC is equal to 1.494 minus 1.418, that is 1.494 minus 1.418 is equal to 0.076 मीटर। 1 पॉइंट, और हमारा हम्प का राइज कितना है 0.6 मीटर, सो delta z equal to 0.6 meter is greater than delta z max, so flow condition is choked. Now delta z equal to is greater than delta z max, so flow condition is choked. Therefore, after establishment
after establishment of flow upstream condition will change and downstream condition will become critical and downstream condition will become critical। तो हमें पता है कि सब क्रिटिकल फ्लो के केस में क्या होता है, अपस्ट्रीम की डेप्थ बढ़ती है कि घटती है, बस यही बताना था। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ लोकल राइज ऑन द वाटर सरफेस? डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम विल इंक्रीज। क्लियर है ना? सिंस इट इज अ सब क्रिटिकल फ्लो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, therefore E1 dash is equal to EC plus delta Z and E2 dash is equal to EC. Therefore, since it is, ये पूरी एनालिसिस हमने कर रखी है सब क्रिटिकल फ्लो, सो अपस्ट्रीम डेप्थ विल इंक्रीज after establishment of, क्लियर है ना? बाकी आप y1 और yc निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। T2 भी डिस्कस कर देता हूं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर T2। क्लियर है मेरी बात? T2 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप एक बार इसको रीड करिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ T2। लास्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा इस चैप्टर का, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं। T2 पहले देखो, मैं पूरा डेटा एक जगह लिख देता हूं, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कैसे करना है। अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विद अ बेस विड्थ ऑफ 6 मीटर। इनिशियली क्या है, ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसका बेस विड्थ कितना है, 6 मीटर। B1 is 6 मीटर। और क्या दे रखा है, साइड स्लोप्स दे रखा है, बोथ आर सेम 2:1, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। क्लियर है? ओके। कैरीज अ फ्लो ऑफ, डिस्चार्ज दिया है हमें 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज दे रखा है 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। There is a smooth transition to a rectangular section। इस ट्रेपेजॉइडल को क्या बना दिया मैंने, रेक्टेंगुलर। इस रेक्टेंगुलर चैनल की विड्थ क्या है, इट्स विड्थ इज B2 is 6 मीटर अगेन। ठीक है, साइड स्लोप हटा दिए बस। अकम्पनीड बाय ग्रेजुअल लोअरिंग, इस बार राइज नहीं है, बेड में क्या है, इस बार लोअरिंग है, तो इट इज अकम्पनीड बाय अ लोअरिंग ऑफ बेड। लोअरिंग ऑफ बेड हुआ। लोअरिंग कितने से हो रखा है, लोअरिंग इज अगेन बाय delta Z equal to, lowering is how much, by delta Z equal to 0.6 meter। Okay, find the depth of water within the rectangular section। what is the minimum amount, y1 भी दे रखा है, at a depth of 2.5, y1 दिया हमें 2.5, मुझे ये y2 निकालना है। आई नीड टू फाइंड द डेप्थ इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन।
And what is the minimum amount by which the bed must be lowered for the upstream flow to be possible as specified? Clear? तो ये डेटा गिवन है, मुझे फर्स्ट पार्ट में y2 निकालना है. ये केस थोड़ा डिफरेंट है. हमने या तो हम्प की बात की है या विड्थ कॉन्ट्रैक्शन की बात की है, बट इसमें क्या हुआ है, हमारा पूरा का पूरा चैनल क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो गया है. पहले ट्रेपेजॉइडल था, फिर स्मूथली ट्रांजिट कर दिया आपने रेक्टेंगुलर में. स्मूथ ट्रांजिशन है, इसका मतलब टोटल एनर्जी लाइन इज हॉरिजॉन्टल, नो लॉसेस आर देयर. क्लियर? लॉसेस को कैसे लेते हैं आपको बता ही रखा है. और इस बार राइज नहीं है, इस बार क्या है, फॉल है बेड में. क्लियर है? एक ये भी चेंज. स्टेप वही रहेंगे, स्टेप विल बी सेम. उन्हीं स्टेप से मैं एनालाइज करना स्टार्ट करता हूं सिचुएशन. क्लियर? सबसे पहला स्टेप क्या था, चेक द नेचर ऑफ फ्लो. फ्लो का नेचर चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो लेट्स चेक द नेचर ऑफ फ्लो. स्टेप 1, check the nature of flow. Steps वही रहेंगे, steps will not change. तो सबसे पहले फ्राउड नंबर निकालूंगा सेक्शन 1 पे. सेक्शन 1 पे टॉप विड्थ बता पाओगे आप कितना होगा? टॉप विड्थ T1 इज इक्वल टू 2.6 प्लस 2.5 इंटू 5 10 और 10 प्लस 6 इज 16 मीटर. क्लियर है? टॉप विड्थ कितना हो जाएगा? 16 मीटर. तो FR1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर T1 बाई GA1 का Q. T1 कितना है हमारा? 16 मीटर. सो 60 का स्क्वायर इंटू 16 अपॉन G 9.81 इंटू एरिया कितना होगा हमारा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज 6 प्लस 16 22 बाई 2 इज 11 इंटू 2. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट का क्यूब. तो इससे मेरा FR1 आएगा. FR1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो FR1 कितना आ जाएगा? 0.531. FR1 आएगा 0.531, लेस देन 1. दिस इंप्लाइज फ्लो इज सब क्रिटिकल. फ्लो क्या है? सब क्रिटिकल. स्टेप 2 क्या होगा? कैलकुलेट E1 एंड E2. वही स्टेप्स, एकदम सेम स्टेप्स. देखो आप, इन्हीं 4 स्टेप्स में हर वक्त क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. कैलकुलेट E1 एंड E2. E1 क्या होगा? Y1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2GA1 का स्क्वायर. Y1 कितना है? 2.5 प्लस Q स्क्वायर by 2 into 9.81 into 11 into 2.5 का स्क्वायर. सो कितना आ जाएगा E1? E1 will come out to be, इससे कैलकुलेट करेंगे तो 2.743 मीटर. 2.743 मीटर. इस बार E2 कम नहीं होगा, E2 बढ़ जाएगा. सो E2 इज इक्वल टू E1 प्लस डेल्टा Z. 2.743 प्लस 0.6. कोई लॉसेस नहीं गिवन है तो मैंने कंसीडर नहीं किया है. सो 3.343 मीटर. 3.343. नाउ वी विल चेक फॉर चोकिंग कंडीशन. स्टेप 3 यही होता था. एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं. चेक फॉर चोकिंग कंडीशन. उसके लिए बेसिक रूल तो देखो वही है. क्या रूल है कि अगर सेक्शन 1 पे तो कंडीशन चोक नहीं है ना, बिकॉज सेक्शन 1 पे तो फ्लो हो रहा है. तो चोकिंग ऑब्वियसली कहां चेक करेंगे? सेक्शन 2 पर. चोकिंग के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी. तो EC निकालेंगे. EC इज द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी at section 2, that is a rectangular section. Therefore, since ये rectangular है तो डायरेक्टली लिख देता हूं 3/2 IC, that is 3/2 कैपिटल Q by B2 का होल स्क्वायर अपॉन G to the power 1/3, that is 3/2 कैपिटल Q by B2. 60/6 is 10, डायरेक्टली लिखता हूं 9.81 to the power 1/3. तो EC आ जाएगा ऐसे कैलकुलेट करके.
सिंस ये रेक्टेंगुलर था इसीलिए फटाफट इसी कैलकुलेट कर लिया है 3.256। मान लीजिए अगर ट्रेपेजॉइडल होता या कोई और शेप होता तो ऑलरेडी देखो मैंने इसी निकालना सिखा दिया है। इसी कैसे निकालते हैं, वाई सी प्लस ए बाई 2t, और वाई सी कैसे निकालेंगे, एफ आर। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बट अगेन द स्टेप्स वुड बी सेम ओनली, इसी निकाल लेंगे। E2 को इसी से कंपेयर करेंगे। नाउ E2 इज इक्वल टू 3.343, बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है, ये इज ग्रेटर देन EC। दिस इंप्लाइज flow condition is not choked। अब बस मुझे Y2 निकालना है, that's it। now I would be calculating Y2 और खत्म करता हूं इसको। आप इतना नोट कर लेंगे, पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा रब करूंगा। स्टेप 4 होगा कैलकुलेट Y2। स्टेप 4 क्या होगा, कैलकुलेट Y2। इसको नोट कर लेंगे, बस अब मुझे Y2 को कैलकुलेट करना है। तो अगर दूसरा चैनल रेक्टेंगुलर के अलावा कोई और शेप भी होता तो डिफिकल्टी नहीं होती, परेशान नहीं होना है। अगर ट्रेपेजॉइडल को ट्रेपेजॉइडल में भी चेंज करता तो बस EC की कैलकुलेशन चेंज होती, बाकी स्टेप्स तो यही रहते हैं। EC ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया फॉर अदर शेप्स एज वेल, ठीक है। ये EC इज इक्वल टू 3/2YC केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए है, हर वक्त नहीं लगाएंगे आप इसको, क्लियर है ना। सो स्टेप 4, लास्ट स्टेप, कैलकुलेट Y2। Y2 कैसे निकालेंगे, E2 इज इक्वल टू Y2 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2G Y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.34 क्यूबिक बना लो। Y2 का क्यूब माइनस 3.343 Y2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 2 इंटू 9 ऑन सॉल्विंग वी गेट Y2 के 3 रूट्स आई हैं। ऑन सॉल्विंग वी गेट क्या आएंगे, Y2 के 3 रूट्स, Y2 के 3 रूट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे 2.573 मीटर, मैंने सॉल्व कर लिया था 2.573 मीटर, और क्या आएगा, 572 कर लो, 1.843 माइनस 1.07। ऑब्वियसली नेगेटिव रूट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, अडॉप्ट कौन सा करेंगे, सबसे बड़े वाला रूट। क्यों, सिंस फ्लो इज सब क्रिटिकल, सिंस फ्लो सब क्रिटिकल है इसलिए आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डेप्थ तो निकाल लिया, सिंस फ्लो इज subcritical, so adopt Y2 is equal to 2.57। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में डेप्थ भी निकाल सकते। क्लियर है मेरी बात, नोट कर लेंगे सभी, नोट दिस डाउन, ओके ठीक है। अभी हुआ नहीं क्वेश्चन खत्म, एक और पार्ट पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट बाय व्हिच द बेड मस्ट बी लोअर्ड फॉर द अपस्ट्रीम फ्लो टू बी पॉसिबल एज स्पेसिफाइड। देखिए राइज के केस में डेल्टा जेड मैक्स होता है, तो फॉल के केस में क्या होगा, डेल्टा जेड मिनिमम। जैसे डेल्टा जेड मैक्स के केस में सेक्शन 2 पर क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी होती है, वैसे ही डेल्टा जेड मिनिमम के केस में भी E2 क्या होगा, EC के बराबर। ऑब्वियसली देखो E2 E1 से ज्यादा है ना, इसलिए फॉल कराना पड़ेगा बढ़ाने के लिए एनर्जी, क्लियर है। सेकेंड पार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन, सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट कर रहा हूं। एट डेल्टा जेड मिनिमम डाउनस्ट्रीम कंडीशन इज क्रिटिकल
Therefore E2 is equal to EC. EC मैंने निकाल रखा था ऑलरेडी. EC कितना था? 3.252 मीटर. 3.252. So delta Z minimum is equal to E2 माइनस या EC माइनस E1 करूंगा इस बार. तो EC कितना है? 3.252 माइनस E1 कितना है हमारा? E1 जो मैंने कैलकुलेट किया था that was 2.743 है ना. 2.74. इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर 0.527 या 0.528. इट इज वन एंड द सेम. क्लियर. इतने से अगर हम बेड को लोअर करेंगे 0.527 या 0.528 तो यू विल गेट द सेम एनर्जी. सिंपल था एकदम. यू विल गेट this is the delta Z minimum such that the upstream condition is possible as specified. थोड़ा ध्यान दो, यहां पर अगर लोअरिंग नहीं करेंगे तो फ्लो नहीं हो पाएगा. इस चैनल और इस चैनल को कंपेयर करो. क्या हुआ है कि हमने ये साइड स्लोप ही तो धीरे धीरे वर्टिकल कर दिए. जैसे जैसे साइड स्लोप आप वर्टिकल करते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसीलिए चैनल्स को जनरली हम ट्रेपेजॉइडल बनाना चाहते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो, लॉसेस कम से कम. सिंस रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में फ्लो कराने के लिए एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए यहां पर हमने क्या दिया है? फॉल. क्लियर है. तो इतना डेल्टा जेड मिनिमम अगर करोगे तो फ्लो विल बी हैपनिंग एज स्पेसिफाइड. और आप देख सकते हैं हमारा डेल्टा जेड इक्वल टू 0.6 मीटर ग्रेटर देन डेल्टा जेड मिन था. इसीलिए ये वाला कंडीशन नॉट चोक्ड आया. अगर डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा जेड मीन से कम होती तो ऑब्वियसली द फ्लो कंडीशन वुड हैव बीन चेंज्ड. अपस्ट्रीम फ्लो वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. दैट इज आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो अपस्ट्रीम कंडीशन वुड हैव बीन चेंज्ड. सिंपल था. पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस आपको समझा दिया. क्यों ऐसा फॉल करने की जरूरत पड़ रही है, डेल्टा जेड मिनिमम कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन. ये ट्राइंगुलर की जगह अगर कोई और ट्रेपेजॉइडल शेप भी होता तो कैसे एनालिसिस करेंगे तो आप समझ गए. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए. ऑलमोस्ट हमने हर टाइप के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कवर कर लिए. जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए आपको और जो वर्कबुक में क्वेश्चन गिवन, अगर ये सारा ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्टली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन गिवन इन एनी एग्जाम. दीज आर ओनली द बेसिक कंसेप्ट्स दैट आर ऑलवेज बीइंग आस्क्ड बाय यू. क्लियर है मेरी बात? इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में. सिंपल सिंपल बातें थी. लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट इट इज नॉट टफ. ट्रिकी है बट टफ नहीं है. अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते तो आप भी इसको आराम से सॉल्व कर लेते. नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेजुअली वैरिड फ्लो. दैट आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसके बाद के जो 3 चैप्टर है दैट इज ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, रैपिडली वैरिड फ्लो एंड सर्जेस. आजकल इन चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो इन तीनों चैप्टर्स को भी मैं डिटेल में लूंगा. इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड स्टार्ट विद ग्रेजुअली वैरिड फ्लो. ओके, बाय बाय एवरीबॉडी.